मिलेगी इससे. Of course, it will make a lot of difference in the Senate. You know, this is a new thing for at least for Pakistani. A lot of other countries have done it, but it will make a big difference in the well-being of Pakistani community as well as well-being of Pakistanis back home in Pakistan. I think it's about time that the Pakistani community take an initiative in making this country aware of how much we are dedicated in supporting our country back home, and they're looking at us as if we care about them. We don't want to forget our own people in our own country. My name is Sultan Hayat. I'm a graduate of King Edward Medical College. Yeah, it's a good idea. I think it's a good organization, and a good start has been made. We need the expertise of Pakistani people in business and in finance, getting them together, putting resources together, and help the community in states as well as help our people back home in Pakistan. Shireen Kalbani. I'm Mahmood Kalbani, Hyderabad, Sindh originally. Both of us are graduates of Liaquat Medical College, and we are here in St. Louis for the last 30 years. I think it's a great idea. Will work very well. We should try to spread it more in different cities, and if it works, it will be great. I really liked it. Well, basically, I'm not a politician, but what I think today it's been an excellent idea. And I'm quite positive about it, that American Muslims are going to come forward and help the things out for this venture to grow successfully. I think it's a very worthwhile venture. We're fortunate to have experienced not only success in this country, but we also understand how systems can work. If we can transmit some of that knowledge back to our motherland, I think everybody will be better off. The issues with Pakistan are numerous, but one of them also is the fact that there are no systems. Things depend on individuals, which is very unlike how things work in this country. And if we can somehow implement some of those things over there, I think that in itself would be a worthwhile project. Safir Pakistan. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या नादीन, हमेशा की तरह आज भी एक छोटी सी बातचीत आपसे। नादीन, जैसा जानते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान से बड़ी वालियाना अक़ीदत रखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जब कभी किसी ने आवाज़ दी उनको मदद के लिए, उन्होंने आगे बढ़ के मदद की है पाकिस्तान की। बहुत बड़े बड़े चंदे भी दिए हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, बहुत से फ़ंड बने, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिन्होंने टीवी के ज़रिए, फंड रेजिंग के ज़रिए लाखों लाखों डॉलर जमा किए, और जिनमें वो लोग भी मौजूद हैं, यहीं कैलिफोर्निया में भी हैं और दूसरे इलाकों में मौजूद हैं, जिन्होंने पैसे जमा करा के दिए और उनकी मदद की और उसके बोर्ड में भी रहे। लेकिन आज तक देखना यह है कि पाकिस्तान में गुर्बत, जहालत और तालीम से महरूमी मौजूद है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्यों मदरसे खोल रहे हैं, क्यों स्कूल नहीं खोल रहे हैं, कहाँ वो पैसा गया जो इन लोगों ने जमा किया? आज वो सीटें बदल रहे हैं, आज वो चेहरे बदल रहे हैं। कल वो मुशर्रफ की तारीफ़ करते थे, उनके गीत गाते थे, आज वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब उनसे उनकी हमदर्दियाँ हैं और उनको वो लारे लपे दे रहे हैं। आखिर क्या उन्होंने फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ज्वाइन करना है या उन्होंने वाकई काम करना है? आप तमाम लोगों को सोचना होगा कि आपने किस फ़ंड में पैसे देने हैं, कौन सा फ़ंड
जो है वो कायम रहेगा और दायम रहेगा। उसके पीछे लोग कौन हैं, क्या उन्होंने कभी कम्युनिटी की खिदमत की है, क्या कम्युनिटी उनको जानती है, क्या कम्युनिटी उनको पहचान सकती है, क्या कम्युनिटी उनका दामन पकड़ सकती है। नए नए लोग आ रहे हैं। अब एक और पाकिस्तानी अमेरिकन फ़ंड कायम हो रहा है। मुझे पता नहीं उस फंड में आगे क्या होगा। इससे पहले भी बहुत सारे फ़ंड कायम किए गए। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। आइंदा फ़ंड देने से पहले आपको पूरी जांच पड़ताल करनी होगी कि आया इस NGOs का, इस अदारे का रिकॉर्ड है क्या। वही लोग चेहरे बदल के दोबारा शामिल हो रहे हैं NCHD में और दावे कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत काम करेंगे। नाज़रीन, आने वाले ऐसे फंड से आप बिल्कुल होशियार रहें और आप ऐसे NGOs की मदद करें वाकई जो रिकॉर्ड पे हो और जिनका कोई कंट्रीब्यूशन हो और जिनके कोई नताइज आपने देखे हो। इसके अलावा मेरी अपना से गुजारिश है कि दोबारा वही कोर्ट कचहरी का दौर ना शुरू करें। अपना पहले काफ़ी हट हो चुकी है इस कानूनी चाराजोई से, अदालतों के चक्करों से। अपना को अदालतों के चक्कर से निकलना होगा, ये लॉ सूट के चक्कर से बाहर होना होगा और एक तरोताज़ा और एक बहुत ही प्रोडक्टिव अपना को आगे बढ़ाना होगा जो पहले रही है, ताकि आप बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन कर सकें, पाकिस्तान की सपोर्ट कर सकें, पाकिस्तान की मदद कर सकें। अगर आप इन्हीं कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे तो आपके अगराज़ और मकासद जो हैं वो फौत हो जाएंगे। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट्स मार्च के अंदर होना करार पाई है। ये सब चीज़ें तय हो चुकी हैं और आप अपने अपने इलाकों से हमें लोग नॉमिनेट करें जो इस बात के अहल हैं कि उनको अवार्ड दिया जाए। मुख्तलिफ शोबे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और देखिए। और यहाँ भी आप देख रहे हैं जो अदारे हैं जिन लोगों को हम अवार्ड देना चाहते हैं, जिसमें वुमेन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, फिजिशियन ऑफ द ईयर भी हमने रखा है और इसमें यूथ अवार्ड भी है। अगर कोई ऐसा यूथ है जो बड़ा ब्राइट है और आप उसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट टुडे, कॉल अस और सेंड अस ईमेल। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट मुसलसल 10 साल से हो रही है और हमने काफ़ी लोगों को ऑर्गेनाइज किया है। ये नेशन वाइड अवार्ड नाइट होगी जिसमें मुख्तलिफ पर्सनालिटी, मुख्तलिफ ग्रुप शामिल होंगे और इसमें कामयाबी ऑफ कोर्स आपके बगैर नहीं हो सकती। आपका ताउन, आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।